محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے۔ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہیں ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے ہیں، شام میں بھی ہوئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔
तो हाजिरी हो गई। यहाँ अभी आंख बंद कर लिया आपने, मुल्ला बाड़े की मस्जिद में बैठे हैं, गुनाहों से तौबा करनी है, कुरान की आयत पर अमल करना है हमको। अल्लाह ने फरमाया रसूल के पास जाने का हुक्म अल्लाह ने किया। अब मैं यहाँ बैठा, चल के जाने के लायक नहीं, आंख बंद कर लिया, मिनट भी नहीं लगे मदीने पहुंच गया, मिनट भी नहीं लगे। ये कितनी तेज हाजिरी है। बारगाह रसूल में खड़े होने का तस्वूर ले आया और फिर सामने अपने रसूल को हाजिर पा करके अब तौबा करना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तूने फरमाया गुनाह हो जाए तो रसूल के पास आ जा, मैं आ गया। अब तूने फरमाया बख्शिश तलब कर मुझसे, मैंने बख्शिश भी तलब कर ली, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया। तीसरा काम है अब रसूल का, अल्लाह के रसूल सिफारिश करें। अब रसूल के पास तुम्हें कहना होगा ऐ अल्लाह के रसूल, हुक्म खुदा पर मैं आपके पास आया हूँ और हुक्म खुदा पर मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, बस आपके इस्तिग़फ़ार की, आपके सिफारिश की देर है और अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यही तो अकीदा बरेली का इमाम बार बार तुम्हें कह रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, यहाँ मेरे अजीजों गुनाहों की बख्शिश तलब करो और रसूल बेहिसाब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को सुनता भी है और बंदों को पाक करके वहां से रवाना भी फरमाता है। अब इसकी दलीलें मैं देता हूं। एक और कुरान की आयत पढ़ करके मैं आगे आऊंगा कि रसूल इस वक्त भी माफ करते हैं कि नहीं करते, कैसे पता चलेगा? आते हैं कि नहीं आते हैं, जिंदगी में है या नहीं है, इसको कुछ दलाइल से मैं साबित करूंगा। दूसरी एक आयत है कुरान पाक में और वो भी बहुत हौसला अफजा आयत है हमारे लिए, बहुत हौसला अफजा है। इसमें भी देखें आप, अरबी के ग्रामर थोड़े बहुत अगर मुसलमानों को मालूम हो तो कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह, कोई उनको बहकाएगा नहीं। मैं आपको तारीख बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला पहले की उम्मतें जब नाफरमानी करती तो अजाब आ जाता। कौम लूत पर बहुत भयानक अजाब आया, कौम समूद पर भयानक अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत भयानक अजाब आए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत अजाब आए। सब कौमें जब नाफरमानी करती तो उनके अजाबात भी कैसे थे। बास कौमों को खिंजीर बना दिया गया, बास को बंदर बनाया गया, बास के लिए जमीन फट गई, सब अंदर चले गए, बास के लिए आसमान से पत्थर बरसाए गए, नोकीले पत्थर, वो बरसते थे तो उनकी खोपड़ियां पड़ जाती थी। तो ये सख्त तरीन अजाबात आए, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुनहगार उम्मत जिसमें हम और आप हैं, हमें एक तोहफा दिया। अब अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला अब इस उम्मत पर वैसे अजाब नाजिल नहीं करेगा, अल्लाह की तरफ से है ये। तुम्हारे अंदर गुनाह आज भी वो सारे हैं जो पिछली उम्मतों में थे, लवातत भी है, आज नाप तोल में कमी ये भी है, जिना भी है, चोरी भी है, ये सब गुनाहों में जब वो कौमें मुलव्विस होती थी तो अजाब आता था। आज नहीं है अजाब, है खस्फ और मस्ख का अजाब, बाकी दूसरे अजाबात तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े अजाब, आसमान से पत्थरों के बारिश, खिंजीर की शक्ल बन जाना, बंदर की शक्ल बन जाना, सारे इंसानों की ऐसा अजाब आया नहीं आएगा। रब ताला ने ये फरमाया अब इस उम्मत पर अल्लाह वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा। क्यों मौला, क्यों अब ऐसा अजाब नहीं आएगा? 9वें पारे की आयत सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है व अंत फीहिम, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है, मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया व अंत फीहिम, आप इनके बीच में हैं। अब यहाँ पर भी वही कायदा है जो कलमे का मैंने बताया, रसूल को उस वक्त कहा गया था आप इनके बीच में हैं। वो 100 साल पहले भी हमारे बीच में थे, 1000 साल पहले भी हमारे बीच में थे, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहाँ फरमा रहा है? कुरान पाक में। अगर तुम कहते हो रसूल नहीं है, मर कर खत्म हो गए, तो फिर मैं कहता हूँ अजाब आ जाना चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए, पत्थर बरसना चाहिए, कम से कम उन पे तो बरसना चाहिए जो रसूल को मरकर खत्म कर दिए। नहीं ना, उनके अकीदा रखने से रसूल खत्म तो नहीं होते।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वान्त फीहिम। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही के ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल है। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए, मैं चला जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे, थोड़े लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन जो महफिल थी वो नहीं कहलाएगी। बाद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करें, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महफिल चली जाएगी, क्योंकि मुकर्रिर गया, महफिल भी गई। दूल्हा आता है, दूल्हा के आने से पहले स्टेज भी सजा है, कुर्सी भी लगी है, बाराती भी खड़े हैं, सब इंतजार में है ना। दूल्हा आया, शाम तक रुका, दुल्हन को लेकर गया, बाराती अब क्या करेंगे, खाना भी खत्म हो गया, वहां हाल में रात तो नहीं बिताएंगे, चले जाएंगे। और डेकोरेटर क्या करेगा, डेकोरेशन निकाल लेगा, कुर्सी हटा दी जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा। यही तो उसूल है ना दुनिया का। जिसके लिए महफिल सजी है वो जाएगा तो महफिल भी खत्म हो जाएगी। अब मैं आओ हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अपने रसूल से फरमा रहा है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं आसमानों को बनाता, ना जमीनों को बनाता, ना दुनिया को बनाता, कुछ नहीं बनाता अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता। पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात मेरे महबूब के लिए सजाई है, अपने हबीब के लिए सजाई है। और रसूल आने वाले थे, उनके आने से पहले 1,24,000 अंबिया को बराती बनाकर भेजा गया है, इंतजार में भेजा गया है। आसमान का शामियाना ताना गया, जमीन का बिछोना बिछाया गया, सितारों की चमकाहट लगाई, जगमगाहट लगाई गई, चांदो सूरज को लाइटिंग के तौर पर कायनात में सजाया गया है। और यहाँ पर दरख्तों के फल पौधे सारे, ये सजावट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज फरमा दी और इंसानों के भी एक अजीम झुरमट रखा। और उसके बाद अल्लाह का वो महबूब दूल्हा बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आया, जिसके इंतजार में सारी कायनात थी। चांद भी उसी के इंतजार में था, सूरज भी उसी के इंतजार में था, आसमान भी उसी के इंतजार में है, जमीन भी उसी के इंतजार में है, अंबिया भी उसी के कसीदे पढ़ करके दुनिया से गए। अब वो रसूल दूल्हा बनकर के आया, अपनी हयात तय्यबा के 63 साला उस रसूल पाक ने जाहिरी जिंदगी में गुजारे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूल 63 साल के बाद अपने आप को पर्दा फरमा लिया, हमारे चश्मे आलम से रूपोश हुए। मुझे बताओ, दूल्हा दुनिया से गया है, मैं पूछता हूं चांद तो क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों बाकी है, जमीन क्यों अभी तक ठहरी है, आसमान का शामियाना क्यों लगा है, ये पेड़ पौधे अभी तक क्यों बाकी हैं, ये क्यों हैं? दूल्हा चला गया, डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया, सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है, दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है, दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा। ये रसूल पाक की हयात की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, मैं कहता हूं दूल्हे के लिए सजाया गया था तो सजावट खत्म होनी चाहिए कि नहीं?
सजावट खत्म हो जानी चाहिए थी, ये सजावट आज भी है। ये इसी की बात की दलील है कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न, वो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मानना पड़ेगा सब कुछ है तो वो भी है, सब कुछ है तो वो भी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। क्या है वो? जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। तुम सब जिंदा हो, अगर जान ही निकल गई तो तुम सब मुर्दा हो जाते। जान है वो जहान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, और जान है तो जहान है। यही बात तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे जान अगर चली गई तो तुम क्यों जिंदा हो? जान है अब भी, और उसी जान की बदौलत ये गर्माहट भी हमारे अंदर है। अगर ये तपिश आप देख रहे हो, ये हरारत हमारे जिस्मों में देख रहे हो, तो उसी नूरे खुदा की बरकत है। वो रसूल पाक की तुरबत अनहर से छन कर आने वाली रोशनियां हमारे सीनों को आज भी मुनव्वर मुजल्ला की हुई है। इसीलिए तो मैं मेराज की शब के मुतालिक भी यही कहता हूँ, रसूल रात के वक्त सफर पर गए थे। कितना लंबा सफर किए हैं। सिर्फ अगर मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर नाप लें तो 1.5 महीने का सफर था, और उसके बाद आसमानों का सफर। खुद मेरे आका फरमाते एक आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत 500 साल अगर घोड़ा दौड़े तो भी नहीं तय कर पाएगा। इस तरह 7 आसमानों का सफर, जन्नत व दोज़ख के नजारे, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, सबका दीदार, फिर बारगाह इलाही में पहुंच, फिर उसके बाद वापस तशरीफ लाए। लेकिन यहाँ हैरत इस बात की हो रही है, रसूल जितना चाहे लंबा सफर करें, जब यह कहा जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अकलें हैरान होती हैं, शॉर्ट टाइम में, इतने वक्त में बिस्तर गरम कितनी देर रहता है? 1 मिनट, 2 मिनट। जंजीर दरवाजे की कब तक हलेगी? 1 मिनट, 2 मिनट। 1 मिनट में 7 आसमानों का सफर, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदे, ये सब कैसे मुमकिन है? तब बाज़ मुहक्किकीन ने यही कहा, मेरे अजीजों, वो जाने कायनात है, वो जाने कायनात है। अल्लाह ने कायनात की जान को अपनी बारगाह में बुलाया था, तो कायनात का जो निजाम था, टाइम था, जहां था वहीं रुक गया। इसलिए कि जान नहीं है तो घड़ी भी नहीं चलती है। घड़ी में अभी 11 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, सेल निकाल लिया तो वहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? और तुम 4 घंटे के बाद सेल डालोगे तो 4 बजे से नहीं चलेगी। कहां से चलेगी? 12 पे अगर सेल निकाला था, 12 से ही चलना है, इसलिए कि तुमने उसकी जान निकाली थी। अब जब जान डालोगे वहीं से चलेगी। मैं रात की शब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अपनी दिलों में बुलाया, वो जाने कायनात को अपनी बारगाह में बुलाया। तो मैं कहता हूं वो सफर 500 साल का था कि 5000 साल का था या 5 लाख साल का था, यह हमें मालूम नहीं। लेकिन कायनात को रसूल ने जहां छोड़ा था वो वहीं रुकी थी। जब वो जाने कायनात वापस आई तो जहां वक्त रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। ये है मौजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हें मानना पड़ेगा वो जाने कायनात हैं, वो असले कायनात हैं, वो मकसूदे कायनात हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब इस हैसियत को तुम समझोगे, तब फिर तुम हुजूर के हयात का इनकार नहीं करोगे। हुजूर पाक को मुर्दा मरकर मिट्टी में मिलने वाला इस तरह के जसारत वाले, जुरत वाले कलमात नहीं बकोगे। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए वो आम बशर नहीं है, वो नूरी बशर हैं और अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने जब अपने फरिश्तों को इतनी ताकत दी है तो अपने खास महबूब को कितनी ताकत दी। वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात में हैं। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बाद वफात अगर ना हो तो सहाबा कभी हुजूर के पास नहीं जाते। एक सहाबी हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुने कि नहीं? हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल हैं।
سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے، حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی، ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں حضور وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے، حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے، لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے، سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی، لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے۔ وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی۔ اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی، مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں، وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ
निकाले, मुसाफा करता हूँ। अल्लाह अकबर। 400 साल के बाद की बात है ये, और किताबों की रिवायत करने वालों ने ये रिवायत किया, कब्र रसूल से हाथ बाहर आया, उन्होंने मुसाफा भी किया। अजीजा ने गिरामी वकार, अगर हयातुन नबी के मुतालिक तुम मुझसे सवाल करते जाओ और मैं पेश करता हूँ। हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी ताबई, 60 हिजरी में, हुजूर की वफात 11 हिजरी में हो चुकी थी। 60 हिजरी में मदीने में एक बार सैलाब आया, सैलाब में पानी बहुत ज्यादा, और मस्जिद नबवी में भी पानी आया, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास भी पानी आया। 3 कब्रें थी अंदर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की भी कब्रें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, ये सबको मालूम। एक कब्र खुल गई और पैर भी दिखने लगा, पैर भी दिखने लगा। 60 हिजरी की बात कर रहा हूं, ये हदीस पाक में मौजूद है। उस वक्त मदीने वाले जमा हो गए, आओ मदीने वालों, रसूलुल्लाह का कदम दिख रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम जाहिर है। तो सब जमा हुए, भीड़ लगी। हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत जुबैर के बेटे, ये आए, इन्होंने लोगों को हटाया, गौर से देखा और कहा, वल्लाहि मा हादिही कदम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है, बल्कि ये उमर इब्ने खत्ताब का कदम है। कहते मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ ये उमर इब्ने खत्ताब का कदम है। अजीजों सोचो, उमर का कदम सलामत है तो रसूलुल्लाह का जिस्म क्या होगा। तुम तो रसूल के जिस्म पाक के बारे में सवाल कर रहे हो, ताबईन कह रहे हैं उमर का कदम सलामत था 60 हिजरी में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? क्या वो अल्लाह के रसूल हैं? क्या वो नबी हैं? बल्कि हजरत उमर कहते हैं मुझे जो इज्जत मिली है वो कदम रसूल से मिली है, जो इज्जत मिली है वो रसूल पाक की वजह से मिली है। जिनकी ये इज्जत रसूल पाक की वाबस्तगी की वजह से हो, उस रसूल पाक का जिसमें नाज क्या सलामत नहीं होगा। अब आओ खुद हुजूर की हदीस ही मैं बता दूं, नबी अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं, इतने बड़े टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मुझे ये चाहिए भी था, और बल्कि आप अगर कभी सवाल करें, कोई सवाल करे तो सिर्फ एक बात पूछें, मियां तू रसूल पाक की मेराज को मानता है कि नहीं? हाँ मानते हैं, चलो